Entropy, past paper questions. Question 1. Entropy is a measure of the disorder of a system. Describe and explain what happens to the entropy of a gas when the temperature is increased. तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो molecules will gain kinetic energy. They will collide more frequently with the walls of the container, and because there is more randomness in their motion, entropy would increase. तो इसको in words अब लिखते हैं. As temperature increases, molecules of a gas gain kinetic energy because of which they are able to move more quickly, resulting in an increase in randomness या disorder या entropy. So basically, increase in temperature results in an increase in the entropy. The table shows 4 reactions. For each reaction, predict the sign of the entropy change. If you predict no entropy change, write no change in the table below. The first one has been done for you. ठीक है, first one क्या है? CO gas plus O2 gas gives CO2 gas. यानी गैस रहा, no change in state, लेकिन 2 moles 1 mole हो गया, तो there should be a decrease in entropy. Yes, negative. अच्छा, next, Mg solid plus half O2 gas gives MgO solid. एक सॉलिड और एक गैस मिलके एक सॉलिड बना रहे हैं, तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड, विच मींस साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव ही होगा इस केस में भी. नेक्स्ट, copper sulfate solid plus 5 moles of water liquid gives copper sulfate dot 5 water solid. Okay, so 5 moles of liquid are converting into solid, तो change of state from liquid to solid और number of moles भी decrease हो रहा है, तो sign of entropy change would be negative. Last one, NaHCO3 solid plus H positive aqueous, एक solid एक liquid gives Na positive aqueous एक aqueous या liquid, CO2 gas एक gas, H2O liquid. Number of moles increase हो रहे हैं, liquid increase हो रहा है, gas increase हो रहा है, तो change of state from solid to liquid and gas. So there should be an increase in entropy. So sign of the entropy change would be positive. तो इस तरीके से we are able to conclude the sign for the entropy change for all these reactions. There is no reaction जिसमें no change लिखा है हमने यहाँ पे. Explain why the entropy change for the first process is negative. तो स्टेट चेंज तो नहीं हो रहा, लेकिन नंबर ऑफ मोल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना. सिंस देयर इज अ डिक्रीज in the number of moles present, there is a decrease in entropy. जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो एंट्रोपी भी कम होगी, क्योंकि यहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ स्टेट का जिक्र होगा ही नहीं. Calculate the standard entropy change for this reaction. Reaction क्या है? N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. Standard entropy changes are given और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Change in entropy is equal to sum of entropies of products minus sum of entropies of reactants. तो इसके लिए entropy change will be equal to product 2 moles of ammonia है, तो 2 into 193
माइनस एक नाइट्रोजन है तो 192 माइनस हाइड्रोजन 3 है 3 into 131 and this will give us a value of minus 199 joules per Kelvin per mole. So there is a net decrease in entropy in going from nitrogen and hydrogen to ammonia. और ये चीज प्रिडिक्ट भी की जा सकती है क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो 4 हैं और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 हैं, आधे हो रहे हैं, तो देयर शुड बी अ नेट डिक्रीज इन एंट्रोपी और हमने एंट्रोपी चेंज जो कैलकुलेट किया वो भी डिक्रीज इन एंट्रोपी ही शो कर रहा है. Whether or not a chemical reaction is spontaneous or feasible can be deduced by calculating the change in free energy delta G naught at the given temperature. अगर नॉट लिखा है तो टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, वरना नॉट नहीं होगा यहाँ पे. ओके, रिएक्शन इज मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड decomposes to मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसका एंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव 117 किलो जूल्स पर मोल और इसका एंट्रोपी चेंज जो है वो है पॉजिटिव 175 जूल्स पर केल्विन पर मोल. Calculate the value of delta G naught at 298 Kelvin for the above reaction. तो डेल्टा जी नॉट यानी गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच नॉट होगा प्लस 117 माइनस टी जो है वो है 298, तो 298 इंटू एंट्रोपी इज 175 बट जूल्स में है, किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000. तो जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे वैल्यू वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 64.85 किलो जूल्स पर mole. This is the value of the Gibbs free energy for the given reaction and under the given conditions. Next, use your answer to 1 to explain whether or not this reaction is spontaneous at 298 Kelvin. Reaction spontaneous उस वक्त होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है. We should remember that. तो यहाँ क्या लिखेंगे? Since delta G naught is positive, the reaction is not spontaneous at 298 Kelvin. तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही है क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई है. नेक्स्ट, predict the sign of entropy change for this reaction, explain your answer. Prediction है तो 2 moles of H2S gas plus CH4 gas यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 3 है और तीनों गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं. प्रोडक्ट साइड पे एक CH2 गैस है और 4 H2 गैस हैं. तो स्टेट चेंज तो नहीं हुआ लेकिन नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स हो गए. तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स के वजह से जो है वो पॉजिटिव होगी. तो आप यहाँ लिखोगे डेल्टा एस नॉट विल बी पॉजिटिव as there is an increase in the number of moles of gases present. ठीक है, which would result in greater disorder, meaning increase in entropy. Okay, the free energy change delta G naught for this reaction at 1000 Kelvin is plus 51 kilojoules per mole. Calculate the value of entropy change for this reaction stating its units. Okay, so delta G naught equals delta H naught minus T delta S naught. ठीक है ना. अच्छा, अब डेल्टा एस नॉट को अगर डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी इन किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल में. अगर हम डिवाइड बाय 1000 नहीं करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी जूल्स पर केल्विन पर मोल में और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जूल्स पर केल्विन पर मोल में रखना है. तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 नहीं कर रहे हैं.
तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इन्होंने दी है +51, तो ये हो गई +51 इक्वल्स डेल्टा एच नॉट हो गया +241 माइनस टी की वैल्यू है 1000 इंटू डेल्टा एस नॉट। ओके, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? पोजीशन चेंज कर देते हैं। 1000 इंटू डेल्टा एस नॉट इक्वल्स +241 माइनस 51, यानी ये हो जाएगा +190 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया डेल्टा एस नॉट। अच्छा, नहीं, अगर हम इसको डिवाइड बाय 1000 नहीं कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल में आ रही है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज इन किलो जूल्स। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 1000 नहीं करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल में, यानी अभी इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो जूल्स पर केल्विन पर मोल है। तो यही कर लेते हैं, इनटू 1000 अगर कर देंगे तो 1000 और 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है +190 और यूनिट्स हो गए जूल्स पर केल्विन पर मोल। अगर ये वाला जो 1000 है इससे मल्टीप्लाई नहीं करते तो वैल्यू आती किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल में और वो वैल्यू होती 0.19। हमने क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो वो वैल्यू जूल्स पर केल्विन पर मोल में बदल गई, वो हो गई +190। और इन्होंने यह मेंशन नहीं किया किसमें, जब इन्होंने यूनिट्स पूछे हैं तो आप 0.19 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल लिख दो या 190 जूल्स पर केल्विन पर मोल लिख दो, दोनों आंसर्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। How would the value of delta G naught and hence the spontaneity or feasibility of this reaction change as the temperature increases? Explain your answer. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू जो है वो है +190 और डेल्टा H की वैल्यू जो है वो है +241। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, ठीक है ना? अब आपका जो डेल्टा G नॉट है उसको हमें चेक करना है। तो डेल्टा G नॉट कैसे चेक होगा? आपका जो है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है माइनस, अगर टी की वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है ना? ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो एस टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो नेगेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। जो नेगेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव थी इस वक्त, तो ये बोल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से होगा। तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस, इफ द नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेस देन द delta G naught becomes, अच्छा, delta G naught has to be negative in order to be feasible, not positive. Delta G has to be negative in order to be feasible. तो आपका जो वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर की उससे नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो डेल्टा जी जो कि वो पॉजिटिव वैल्यू थी वो कम होना शुरू होगी एंड इवेंचुअली इट विल बिकम नेगेटिव। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन डेल्टा जी बिकमिंग मोर नेगेटिव एंड thus the reaction becomes more spontaneous या more feasible। अब इसको in words लिखते हैं, as temperature increases the delta G value becomes less positive या यहाँ लिख दो more negative, ठीक है? Thus the reaction becomes more feasible as temperature increases। क्योंकि याद रखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब रिएक्शन फीजिबल होगा।
जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, the spontaneity or feasibility of a chemical reaction depends on the standard Gibbs free energy change delta G naught. This is related to the standard enthalpy and entropy changes by the equations shown. Delta G naught equals delta H naught minus T into delta S naught. State and explain whether the following processes will lead to an increase or decrease in entropy. The reaction of magnesium with hydrochloric acid. So magnesium solid plus HCl aqueous 2 moles होंगे will give us MgCl2 aqueous plus H2 gas. तो हमारे पास क्या हुआ? Solid and 2 liquids going to 1 liquid and 1 gas. Okay, so change of state जो है, there is a decrease in the number of moles, yes, but there is an increase, there is a change in state, there is an increase in entropy due to change of state, और change of state को preference दी जाती है over change in number of moles. So entropy will increase, entropy change will be positive. Explanation क्या होगी इसकी? Change of state from solid to gas, यानी हाइड्रोजन गैस जो बन रही है, और मैग्नीशियम सॉलिड जो है वो खत्म हो रहा है। ये हो गया पहला इसका एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा जो है वो है सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्विंग इन वाटर। अब सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड KCl solid plus H2O liquid giving K positive aqueous and Cl negative aqueous। तो हमारे पास जो है यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है अगेन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इसमें भी तो एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये हमारा रीजन है, क्योंकि आपके एक्वस आयंस बन रहे हैं दोनों, और दोनों फ्री आयंस हैं, यानी के पॉजिटिव अलग है और Cl नेगेटिव अलग है। तो इस वजह से जो है आपका चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, जिसकी वजह से एंट्रोपी चेंज विल बिकम पॉजिटिव। नेक्स्ट इज स्टीम कंडेंसिंग टू वाटर। अब स्टीम जब कंडेंसिंग टू वाटर, स्टीम इज H2O gas converting to water is H2O liquid. Change of state from gas to liquid. तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड में एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीजेस, ठीक है। और यहाँ एक्सप्रेशन क्या है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। Next, magnesium carbonate can be decomposed. MgCO3 solid gives MgO solid plus CO2 gas. Delta H is positive 117 kilojoules per mole. Standard entropies are shown in the table. Calculate the delta G naught for this reaction at 298 Kelvin. Include a relevant sign and give your answers to 3 second figures. Okay, तो पहले एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, फिर हम लोग डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, और एंट्रोपी चेंज हम लोग यहाँ साइड में कर लेते हैं। एंट्रोपी चेंज जो है दैट इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट क्या है? MgO, तो प्रोडक्ट हो गया प्लस 26.9, फिर CO2 प्लस 214, ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट है MgCO3, हो गया 65.7, तो 26.9 प्लस 214 माइनस 65.7, इससे हमारा आंसर आएगा प्लस 175.2 जूल्स पर केल्विन पर मोल, प्लस 175.2 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ओके, अब डेल्टा जी नॉट निकालते हैं।
तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट प्लस 117 माइनस टी हो गया 298 इंटू प्लस 175.2 डिवाइडेड बाय 1000। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 64.8 किलो जूल्स पर मोल। तो हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव 64.8 आ गई। और इन्होंने बोला है कि गिव द आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर है मौजूद हमारे पास। नेक्स्ट, explain with reference to delta G naught why this reaction becomes more feasible at higher temperatures. As temperature increases, delta G naught becomes less positive या more negative. Thus, the reaction becomes more feasible as temperature increases. Next, on heating, solid hydrogen carbonate decomposes into sodium carbonate as shown. Calculate the minimum temperature at which this reaction becomes spontaneous या feasible. Show your working. तो डेल्टा जी नॉट को अगर हम जीरो रखेंगे तो शुड बी ग्रेटर देन, या बल्कि डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू जीरो पहले डिफाइन कर देता है। तो जीरो इज अ वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो माइनस टी डेल्टा एस नॉट की पोजीशन चेंज कर दो, टी डेल्टा एस नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट। और निकालना क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अच्छा, इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन बाद में कर देंगे। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब उसमें अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस 130 डिवाइडेड बाय, अब ये जूल्स पर कैलकुलेट करूंगा, तो प्लस 316 डिवाइड बाय 1000। इस तरीके से आप जो है वो टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे। और इसकी कैलकुलेशन से हमारा जो है आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 411 केल्विन। 411 केल्विन। अब है कैलकुलेट द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस फीजिबल, शो योर वर्किंग। अब 411 पे डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0, तो अ वैल्यू ग्रेटर देन 411 शुड बी प्लेस्ड हियर। तो टेम्परेचर यहाँ लिख दो 412 केल्विन, क्योंकि दिस विल बी द मिनिमम टेम्परेचर दैट विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस। यानी अगर टेम्परेचर हम लोग 1 केल्विन इंक्रीज करके लिख देते हैं तो हमारे जो डेल्टा जी नॉट होगा या डेल्टा जी होगा इन दिस केस, वो जो है आपका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और नेगेटिव वैल्यू जब होगी तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड वैल्यू 411 है, लेकिन हम 412 लिखेंगे क्योंकि हमें मिनिमम टेम्परेचर चाहिए फॉर द रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस। 411 पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, 411 पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 है। अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 411 पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो हमने उसको 412 लिख दिया। एंड दैट इज हाउ यू ऑब्टेन द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस।